اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے جناب، اگر آپ ہماری کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں تو بھلا انکار کی کیا گنجائش ہے؟ بابا ادریس نے وہاں پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے ہی دن جب انہوں نے پڑھنے کا آغاز کیا تو پورے گھر میں قہرام مچ گیا، ہر طرف چیخو پکار، بھاگ دوڑ سنائی دینے لگی۔ بابا ادریس صبر و سکون کے ساتھ بیٹھے اپنا عمل کرتے رہے، البتہ جو ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی اس سے ایک بار پھر گھر کے تمام لوگ بے حد خوفزدہ ہو گئے تھے۔ بابا ادریس اپنا عمل جاری رکھے ہوئے تھے اور چیخم دھاڑ اور ہنگامہ آرائی مسلسل ہو رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی وزنی چیزیں اٹھا اٹھا کر ادھر پھینک رہا ہو۔ شیشوں کے ٹوٹنے کی آوازیں ابھر رہی تھیں، لیکن کوئی چیز گرتی ہوئی دکھائی دیتی نہیں تھی، نہ ہی شیشوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ انسانی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ گھر کے لوگ جو بیچارے پہلے ہی اتنے دنوں سے عذاب میں گرفتار تھے، اب مزید سہم گئے تھے اور آپس میں چہم گوئیاں کر رہے تھے۔ یہ بابا صاحب ہیں تو بے شک زبردست، انہوں نے اس گھر میں رہنے والی بدروحوں سے ٹکر لے لی ہے، لیکن اب یہ سوچو کہ اگر یہ ہار گئے تو اس کے بعد بدروحیں ہم سے انتقام لینے پر تل جائیں گی اور یہی سوچیں گی کہ ہم نے اس بابا کو بلایا ہے۔ بیٹے اللہ سے دعا کرو کہ ان بزرگ کو بری روحوں کے مقابلے میں کامیابی ملے، اسی میں ہماری بقا ہے، فضول باتیں نہ کرو۔ کئی گھنٹے یہ ہنگامہ جاری رہا۔ بابا ادریس نے آج کا عمل ختم کیا اور پھر ہر طرف سکون پھیل گیا۔ جب وہ اٹھ کر چلنے لگے تو گھر کے تمام لوگ ان کے سامنے آ گئے۔ بابا صاحب، آپ نے یہ عمل شروع تو کر دیا ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ آپ نے ان روحوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، لیکن اب آپ یہ بتائیے کہ ہمارا کیا ہوگا؟ یہ بری روحیں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی، میں نے ان کے راستے بند کر دیے ہیں۔ یہ شور شرابہ کتنا ہی کریں، لیکن فی الحال یہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہیں جنہیں توڑ نہیں سکتی۔ آج پہلا دن ہے، مجھے مزید 2 دن پڑھنا ہوگا، چوتھے دن انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا، اور وہ نتیجہ ہم پر نازل ہونے والے عذاب کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ بابا ادریس نے پہلی بار ان لوگوں کو ناگوار نگاہوں سے دیکھا اور بولے، اگر آپ لوگوں کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر آپ جانے اور آپ کے کام۔ میں یہاں موجود ارواح سے جھگڑا مول لے چکا ہوں، مجھے تو اپنا عمل کرنا ہی ہوگا۔ آپ چاہیں تو یہاں سے بھاگ جائیں، لیکن یہاں سے بھاگنے کے نتیجے میں آپ کو اگر کوئی نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا بلکہ آپ خود ہوں گے، کیونکہ یہ بری روحیں جانتی ہیں کہ میں آپ ہی کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں کے بزرگ نے نوجوانوں کو ڈانٹتے ہوئے کہا، عجیب بیوقوف ہو تم، ایک شخص ہماری مدد کر رہا ہے اور تم اسی پر نکتہ چینی کیے جا رہے ہو۔ نہیں بابا صاحب، مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے اور میں آپ کو بھی یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ چاہے ہم پر کچھ بھی گزرے، ہم یہاں سے بھاگیں گے نہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا، جو انجام ہوگا ہمارا وہ آپ کے ساتھ ہی ہوگا۔ شکریہ، بابا ادریس نے کہا، اور پھر دوسرے دن وہ پھر پڑھنے کے لیے پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے گرد کوئی حصار نہیں کیا تھا اور ان لوگوں کو اس بارے میں بتا دیا تھا۔ خصوصی طور پر اپنے تحفظ کے لیے مجھے ایک حصار قائم کر کے پڑھنا چاہیے تھا تاکہ عمل کے دوران مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ سکے، لیکن میں اپنے آپ کو آپ لوگوں سے الگ نہیں سمجھ رہا۔ البتہ میری ایک درخواست ہے، آپ سب اکٹھے کسی کمرے میں بند ہو جائیں، میں اس دروازے کے باہر حصار قائم کیے دیتا ہوں تاکہ مفرور روحیں آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کر سکیں۔ انہوں نے بابا ادریس کی درخواست پر عمل کیا اور ایک ایسے کمرے کو منتخب کر لیا جہاں سے وہ اس جگہ کا جائزہ بھی لے سکیں جہاں بابا صاحب وظیفہ پڑھنے بیٹھے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر کوئی ناگزیر صورتحال ہوئی تو کم از کم وہ فرار تو ہو سکیں گے۔ بابا ادریس نے آخر کار عمل کا آغاز کر دیا اور جیسے ہی وہ شروع ہوئے، ہنگامہ آرائی پھر سے جاری ہو گئی۔ وہی طریقہ کار، بڑی بڑی وزنی چیزیں زمین پر گرنے کی آوازیں، شیشوں کے ٹوٹنے کی چنچناہٹ اور کسی کے چیخنے کی آوازیں، ساتھ ہی ساتھ کسی عورت کی سسکیاں۔ پھر کچھ تبدیلی رونما ہوئی اور ایک واضح آواز سنائی دینے لگی، تیرا ستیہ ناس، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، کیوں ہمارے لیے مصیبتیں پیدا کر رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں میں بھی چندر ناتھ جوگی ہوں، وہ حال کروں گا تیرا کہ دیکھنے والے دیکھیں گے۔ میں نے بھی جیون بھر جگ نہیں ماری، وہ تو میرے بھاگ خراب تھے کہ میں وہ نہیں کر سکا جو کرنا چاہتا تھا۔
जा, चला जा यहाँ से, ये घर मेरा है, मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दूंगा। ये तूने अच्छा किया कि मुझे अपना नाम बता दिया चंद्रनाथ। सुन मेरे दोस्त, ये घर होगा तेरा किसी जमाने में, लेकिन अब इन मासूम और गरीब लोगों की रिहाइशगाह है। इसे छोड़ दे, तुझे किसी घर की जरूरत नहीं है, तू कहीं भी रह सकता है। अरे जा जा, अपना मशवरा अपने पास रख, मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है चंद्रनाथ, अपने पास रख लिया मैंने अपना मशवरा। ठीक है चंद्रनाथ, तू अपनी कोशिश कर ले, मैं अपनी कोशिशें करता हूँ, बाबा अदरीस ने कहा और फिर आंखें बंद कर ली। एक खौफनाक फंकार सुनाई दी, लेकिन फिर उसके साथ ही यूं लगा जैसे कोई जंजीर कड़की हो। जंजीर के कड़कने की आवाज ज्यादा जोरदार थी, फिर मुख्तलिफ आवाजें आने लगी और फिर अचानक ही यूं लगा जैसे किसी ने बाबा अदरीस के बाल पकड़कर इन्हें जमीन पर गिरा दिया हो। उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी। कमरे में बंद अफराद लोग ये मंजर देख रहे थे। फिर दोबारा एक जोरदार आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उछलकर जमीन पर गिरा हो। बाबा अदरीस ने खड़े होकर अपने बाल ठीक किए। अब उनके चेहरे पर शदीद जलाल नजर आ रहा था। उन्होंने कहा, वार तूने किया है चंद्रनाथ, और अब जो कुछ होगा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अचानक ही जमीन से एक शोला सा लपका और यूं लगा जैसे किसी के बदन में आग लग गई हो। वो इंसानी ह्योला उछलता फिर रहा था। आग नजर आ रही थी, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा था कि आग किसके जिस्म को चाट रही है। फिर आग जमीन पर लौटने लगी और धुआं उबलने लगा। फिर आवाज सुनाई दी, छोड़ दे, माफ कर दे, देख छोड़ दे मुझे माफ कर दे। औरत की सिसकियां भी तेज होती जा रही थीं और साथ ही आग के शोले की तड़प देखने के काबिल थी। कोई चीख चला रहा था और फिजा में आग के साथ हल्का हल्का धुआं भी बुलंद हो रहा था। फिर यूं लगा जैसे कोई दम तोड़ रहा हो। उसके बाद रोने की आवाज उभरी। कोई मर्द था जो रो रहा था। छोड़ दे, माफ कर दे, एक बार माफ कर दे, तेरा भला होगा। बैठ जा, उठकर बैठ जा, बाबा अदरीस ने कहा, और आग इस तरह साकित हो गई जैसे किसी का जिस्म खाकस्तर कर चुकी हो। आवाजें अब भी आ रही थीं, लेकिन ये कराहने की आवाजें थीं। भस्म कर दिया तूने मुझे, तबाह कर दिया। बड़ा ताकतवर था तू, अब बोल क्या कहता है, बाबा अदरीस ने कहा। जवाब में खामोशी तारी रही। फिर वो आवाज सुनाई दी, क्या करूं मैं, बोल क्या करूं। मुकाबला कर मुझसे चंद्रनाथ, और बता क्या कर सकता है। रहने दे, जाने दे, तू मेरी कहानी सुनना चाहता है, मैं तुझे सुनाता हूं। चल उठ, वो जो सामने छोटा कमरा नजर आ रहा है उसमें दाखिल हो जा। जिस दीवार पर एक तस्वीर नजर आ रही है उस पर हाथ रखना, वहां दरवाजा पैदा हो जाएगा। फिर तू उन सीढ़ियों से नीचे उतर जाना, मैं तुझे अपनी कहानी सुना दूंगा। अगर तू मेरे साथ कोई चाल चल रहा है चंद्रनाथ, तो बेफिक्र है, मैं वहां भी तेरा मुकाबला करूंगा। अरे चल, तुझे अपने बारे में बताना चाहता हूँ, बस और क्या कहूँ। चंद्रनाथ की आवाज उभरी। ये सारी आवाजें वो लोग सुन रहे थे। उन्होंने वो कमरा देखा था जिसमें एक अजीब सी तस्वीर बनी हुई थी, किसी जानवर और इंसान की मिलीजुली तस्वीर, मगर किसी ने उस पर गौर नहीं किया था। वो तो शुरू ही से उस मकान के आसिफ ज़्यादा होने से खौफज़दा थे। बस मकान कोई और नहीं मिला था, इसलिए यहाँ गुजारा कर रहे थे। बहरहाल बाबा अदरीस तन्हाई उस कमरे में पहुंच गए। कमरे में वो तस्वीर मौजूद थी जिसके बारे में चंद्रनाथ ने बताया था। बाबा अदरीस ने बेखौफी से तस्वीर पर हाथ रखा और वो दबती चली गई। वहीं एक दरवाजा नमोदार हो गया जिसकी दूसरी तरफ सीढ़ियां थीं। बाबा अदरीस ने बिस्मिल्लाह पढ़कर सीढ़ियों पर कदम रख दिया। फिर वो नीचे उतरते चले गए। 10-12 सीढ़ियां थीं, वो नीचे पहुंच गए। खूब अंधेरा था। नादिता वजूद ने वहां दीवारों पर लगी मशीलें रोशन कर दी और तहखाने में रोशनी फैल गई। गर्द और मिट्टी की तह नजर आ रही थी। एक अजीब सी बू फैली हुई थी और जमीन पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। पूरे कैद खाने में 2 इंसानी ढांचे पड़े नजर आ रहे थे। आओ, आगे आओ, चंद्रनाथ की आवाज उभरी और बाबा अदरीस अली आगे बढ़कर उन इंसानी ढांचों के पास पहुंच गए। ये परीता है, मेरी अकलौती बेटी। 6 महीने की थी जब उसकी माता मर गई। मेरी धर्म पत्नी पूर्णिमा मेरा संसार थी।
प्रेम करके विवाह किया था, सारे संसार से झगड़ा मोड़ लिया था, जान देते थे हम दोनों एक दूसरे पर भगवान ने हमें संतान दी। प्रीता इस संसार में आई, मगर मेरी धर्म पत्नी इसकी पैदाइश के बाद से ही बीमार हो गई थी। बस एक ही बात कहती थी कि वो अपनी प्रीता को शहजादियों की तरह पालना चाहती थी। अब इसके बाद न जाने उसका क्या होगा। हाथ जोड़ जोड़ कर मेरी विनती करती थी कि चंद्रनाथ मेरी प्रीता को मेरे बाद कोई तकलीफ ना होने देना, इसे कोई कष्ट ना उठाना पड़े। फिर वो संसार से चली गई और मैंने अपना जीवन प्रीता के लिए त्याग दिया। संसार में मेरे लिए इसके अलावा और कोई काम नहीं था कि मैं प्रीता को खुश रखूं। मेरी प्रीता बड़ी होती गई। वो इतनी सुंदर थी कि मुझे उसे संसार की आंखों से छुपाना मुश्किल हो गया। मैं उसे संसार से छुपाए छुपाए फिरता था। मैंने इसके लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ सीखा और चंद्रपाल जोगी के नाम से मशहूर होता गया। मेरे जीवन का एक ही मकसद था कि मैं अपनी प्रीता को अच्छा संसार दूं और इसकी माता की आत्मा को शांति दूं। बाबा जी, बड़ी मुश्किल से मैं उसे संसार की निगाहों से बचाता रहा था और उसके बाद एक दिन हवाई मखलूक का इधर से गुजर हुआ। वो जिन था, मगर उस समय वो इंसानी रूप में था। मेरी प्रीता ने उसे देखा और अपना मन हार बैठी। मैं नहीं जानता कि उसके मन में मेरी प्रीता के लिए कुछ था या नहीं, लेकिन उससे मिलता रहता था वो, और प्रीता उसके प्रेम में दीवानी हो गई थी। फिर एक दिन मैंने उन दोनों को देख लिया। प्रीता उसके चरणों में बैठी थी। यह देखकर मेरा खून खोल उठा। मैंने कहा कि वो एक दूसरे से ना मिले, वरना मैं उनका बुरा हाल कर दूंगा, लेकिन वो जिन उससे मिलता रहा। तब मैंने एक मंत्र पढ़ा और उसके बाद धोखे से उस जिन को उस कुएं में ले आया जो इस इमारत के मशरकी हिस्से में बना हुआ है। मंत्र पढ़कर मैंने जिन को कुएं में धक्का दे दिया और ऊपर से मंत्र का जाला तान दिया। वो बेबस हो गया और अब भी वो इसी कुएं में कैद है। पर जब प्रीता को इसके बारे में मालूम हुआ तो उसने मेरे चरण पकड़ लिए और रो रो कर मुझसे उस जिन की रिहाई मांगी। पर यह कैसे मुमकिन था? हम हिंदू धर्म के लोग थे और वो मुसलमान, और वो भी जिन। मैंने प्रीता की बात ना मानी और उसने मुझे उसी कुएं में कूदने की धमकी दी, तो मैंने उसे यहाँ लाकर तहखाने में बंद कर दिया। मैं संगदिल हो गया था। 6 दिन मेरी प्रीता भूखी प्यासी इसी तहखाने में बंद रही और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। इतना संगदिल हो गया था मैं कि 6 दिन तक मैंने उसकी कोई खबर नहीं ली थी। फिर जब मैं 6 दिन बाद वहां पहुंचा तो मेरी प्रीता आवाज सिसकियों में डूब गई और चंद्रनाथ रोता रहा। फिर बोला, वो मर चुकी थी और मैं गम से पागल हो गया और मैंने कहा कि प्रीता, जिस मौत ने तुझे मारा है उसी मौत मैं भी मरूंगा, और फिर मैंने प्राण दे दिए। ये प्रीता का ढांचा है और ये मेरा। बाबा जी, मैं उस जिन को उस कुएं से निकलते नहीं देख सकता जिसकी वजह से मेरी प्रीता की जान गई। ये सारी बातें अपनी जगह ठीक है चंद्रनाथ, लेकिन इन लोगों ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। मुसलमान हैं ये और मुझे सारे मुसलमानों से नफरत है। और फिर ये घर मेरा है, मैंने इसे बनाया था, किसी दूसरे को इसमें कैसे रहने दे सकता हूँ? जबकि मेरी और मेरी प्रीता की आत्मा यहाँ रहती है। क्या तुमने उसके रोने की आवाज नहीं सुनी? चंद्रनाथ, अब जबकि तुम इस दुनिया से जा चुके हो तो अपने इंतकाम की आग सर्द क्यों नहीं कर देते? मेरी राय है कि इस जिन को आजाद कर दो और खुद अपनी आत्मा को शांति दो। नहीं हो सकता बाबा जी, ये नहीं हो सकता, जिसकी वजह से मेरी प्रीता इस संसार से गई। अरे भूख से मरी थी वो, भूख से। चंद्रनाथ फिर रोने लगा। मगर उस जिन ने तो उसे नहीं मारा चंद्रनाथ। तुम जुल्मी हो, तुम गलती पर हो, दुनिया से जा चुके हो। अपनी रूह को सुकून दो, और अगर तुमने ऐसा ना किया तब भी मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि मैं बहरहाल उस जिन को आजाद कर लूंगा और तुम्हें यहाँ कैद कर दूंगा। तुम जुल्म नहीं करोगे बाबा, चाहे तुम मेरे लोगों पर जुल्म करते रहो। क्या हशर कर दिया है तुमने इन लोगों का, देखते नहीं हो? ये वो तो नहीं है जिन्होंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया हो। चंद्रनाथ की आवाज ना उभरी, अलबत्ता उसके रोने की मध्यम मध्यम सिसकियां सुनाई दे रही थीं। फिर उसने निढाल लहजे में कहा, ठीक है बाबा जी, पर एक काम तो कर सकते हो तुम हमारा। हाँ बोलो, अदरीस अली ने कहा।
हमारी चिताएं जला दो, हमें मुक्ति दे दो, हमारी आत्माएं भटक रही हैं। जब तक हमारी चिताएं नहीं जलेंगी, हमारी आत्माएं इसी तरह भटकती रहेंगी। ठीक है, मुझे कुछ वक्त दो, इस दौरान तुम इस तहखाने में रहो। फिर उसके बाद बाबा अदरीस तहखाने से बाहर निकल आए। उन्होंने ना जाने क्या क्या जतन किए। इस तहखाने में इन लोगों के ढांचों को लकड़ियों और कागजों के ढेर में दबाकर उसमें आग लगा दी। तहखाने में आग भड़क उठी, धुएं के बादल फिजा में बुलंद होने लगे। इस सिलसिले में उन्होंने यहाँ रहने वालों को कुछ नहीं बताया था। अलबत्ता उन्होंने मकान के मुख्तलिफ हिस्सों से धुआं उठते हुए देखा तो वो खौफजदा जरूर हो गए थे, लेकिन इस दौरान उन्हें बाबा अदरीस पर पूरा एतमाद हो गया था, क्योंकि अब उन्हें आवाजें सुनाई नहीं दे रही थीं और ना ही कोई ऐसा वाकया हुआ था जो बायसे खौफ होता। आखिरकार धुआं खत्म हो गया तो बाबा अदरीस अपने दूसरे कामों के जाने मतवज्जे हुए। उन्होंने 7 दिन उस कुएं के किनारे बैठकर कुछ अमल पढ़ा। ये अमल वो रातों को किया करते थे और जहाँ रहने वाले हसन अली, हमजा और नियाज अली बड़ी अकीदत से बाबा अदरीस की कार्रवाइयों को देखते रहते थे। 7वें दिन कुएं से एक धुएं की लकीर बुलंद हुई और फिर किसी ने बाबा अदरीस के पांव पकड़ लिए। वो नादीदा हाथ थे। साथ ही आवाज उभरी, हजूर आला, मेरा नाम अली जा है। आपने जो एहसान मुझ पर किया है इसका सिला मैं आपको कभी नहीं दे सकता, लेकिन आज से मैं अपने आप को आपकी गुलामी में दे रहा हूँ। मैं आपका गुलाम हूँ, आपके हर हुक्म की तामील करूंगा, आपके सारे मुफादात की निगरानी करूंगा। हम तुमसे एक सवाल करना चाहते हैं आलिजा, बाबा अदरीस ने कहा। इरशाद फरमाइए, आलिजा ने कहा। क्या तुम्हें वाकई उस हिंदू लड़की से इश्क हो गया था? हरगिज नहीं, मैं बिल्कुल इत्तेफाकिया तौर पर उस तक पहुंचा था और मेरे हाथ से मेरे अहद वाली अंगूठी निकलकर गिर गई थी, जिसके तहत मैं हर उस शख्स की तहवील में जा सकता था जिसके हाथ में ये अंगूठी हो। वो सादालू लड़की मेरी बात नहीं मानती थी। उसने वो अंगूठी अपने हाथ में पहन रखी थी और जब वो मुझे बुलाना चाहती अंगूठी से मदद लेती। मुझे हाजिरी देना होती, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। फिर क्या? फिर उसके बाप ने मेरे साथ ये अमल किया और वो अंगूठी कहाँ गई? आपने गौर नहीं किया जिस इंसानी ढांचे को आपने नजर आतिश किया। अगर आप उसकी उंगली पर गौर कर लेते तो अंगूठी आपको मिल जाती, लेकिन अब वो खाकस्तर हो चुकी है। आप चाहें तो उसका पिघला हुआ वजूद उस चिता की राख में से निकाल सकते हैं। आलिजा, तुम आजाद हो गए हो। मैं तुम्हारी जरूरत महसूस नहीं करता। तुम्हारा जो दिल चाहे करो। असल में लोग चिल्ले वजीफे करके जिन्नात को काबू में करते हैं सिर्फ अपनी हवस की तस्कीन के लिए। वो उनसे तरह तरह के तमाम अमल कराते हैं, मगर अल्लाह ताला के फजलो करम से मुझे उसकी जरूरत नहीं।